morning to my beautiful, beautiful viewers. Here you are welcomed on this channel named as Passion Era. ये मेरा चैनल है पैशन एरा, जिसका नाम ही मैंने पैशन एरा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ हम सभी अपने अपने पैशंस को फॉलो करते हैं. मेरे चैनल पर मेरा सबसे बड़ा पैशन है दैट इज टू टीच, टू शेयर माई नॉलेज, टू शेयर माई रिसोर्सेज विद पीपल एंड हेल्प देम. तो मेरा सबसे बड़ा पैशन यही है कि मैं लोगों के साथ अपनी वो चीज़ बांटती हूँ जो मैं बांट सकती हूँ, एंड दैट इज माई नॉलेज एंड माई इंटरेस्ट इन इंग्लिश. So this is the first video of my channel Passion Era, and here I am with the topic prepositions. Before starting with this topic, I would like you to know why I started this. Actually क्या है ना कि मुझे इंग्लिश पढ़ना, स्टोरीज एंड मूवीज एंड लिटरेचर एंड आर्ट, इसमें पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट था. सो आई जस्ट वन डे गॉट दैट थॉट, व्हाई नॉट टेक इट टू अनदर लेवल. And so I brought myself into commitment, into a resolution that I am going to help my students with the topics that they find most confused in, with their doubts, also with whatever they want to learn in English. काफ़ी सारे हमारे जो इंडियन भाई बहन हैं, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हम काफ़ी ज़्यादा मतभेद में रहते हैं कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए. अब मैं आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो नहीं समझाऊंगी. वी ऑल नो दैट वे other languages don't work, English is the alternative language that we use to help us in that. किसी भी लैंग्वेज का, नॉट जस्ट इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज का मेन उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम उस लैंग्वेज को प्रॉपर यूज करना, बोलना सीखें. जब तक हम सिर्फ पढ़ने के लिए किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, वो हमारे लिए सिर्फ एकेडमिक्स मार्क्स स्कोर कर सकती है और हम उसे कभी भी अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे चैनल्स होंगे, बहुत सारे वीडियोस होंगे जो आपको इंग्लिश एकेडमिक्स में हेल्प कर सकते हैं. माय डिवोशन एंड माय कमिटमेंट इज टू हेल्प यू विद इंग्लिश एकेडमिक्स एज वेल एज स्पीकिंग इंग्लिश, एज वेल एज यूजिंग इट इन योर लाइफ, एज वेल एज enjoying learning the process, enjoying the process of learning English. Okay, so here I am today with my first topic, that is preposition, one of the grammar topics. हम सभी जानते हैं भाई, किसी को भी ग्रामर पढ़ना नहीं अच्छा लगता. बोरिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. भाई पढ़ना तो पड़ता है, सिंस इट इज इन आवर सिलेबस हमें ग्रामर पढ़नी पड़ेगी. एंड ऑल्सो इफ वी वांट टू यूज इंग्लिश करेक्टली, हमें ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसको यूज करने के तरीके बहुत अच्छे से आने चाहिए. और हम इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे. I promise you I'm not going to make this a boring subject for you. I'm not going to make it a boring topic for you. I'm going to make it as interesting as possible. And if you feel it is not interesting, you can always give me your suggestions in the comment box below. Open to all criticism and open to all of your suggestions. Also ये मेरा पहला topic है, so it's not only that मैं सिर्फ grammar ही पढ़ाऊंगी, मैं आपको literature के भी stories cover करूंगी. And also I'll be giving you some fun exercises where you can improve your communication, where you can work on your communication, where you can work on your accents. If you really want that, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आप स्पीकिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन सुधारना चाहते हैं. तो I'll definitely come up with videos that will help you in improving your communication, in improving your grammar, in improving your vocabulary. So many things to cover in preposition. It is definitely going to be a very interesting journey. Okay. So let's begin with the topic, that is prepositions. अभी prepositions होते क्या हैं actually? Before answering that question कि preposition actually होते क्या हैं, I would like you to read these two questions that you see on the screen. First one, the flower pot is the table. One more time, the flower pot is the table. Second question, second statement, the flower pot is on the table. आपने दोनों ही sentences को बहुत ध्यान से पढ़ा. The flower pot is the table and the flower pot is on the table. पहला statement जो है वो आपको बताता है कि the flower pot, जो हमारा भाई गुलदस्ता है, वही टेबल है. और सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड सेंटेंस जो हमें बताता है वो है कि जो हमारा गुलदस्ता है, फूलों का प्यारा सा गुलदस्ता है, प्यारा सा वॉस है, वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. कहाँ रखा हुआ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है. तो भाई अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ आता है हमारा
preposition, हमारा जो मेन हीरो ऑफ द स्टोरी है, जो हमारे स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज preposition. अब भाई यहाँ आता है preposition और अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है. Let's see what is this preposition. Preposition हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है. Preposition is made up of two words, pre, that means before, and position, that means place. Pre जिसका मतलब है पहले, किसी भी चीज के पहले. Pre का मतलब होता है पहले, और position का मतलब होता है उसकी place, उसकी location, वो चीज किधर है. तो अब अगर हम इसकी strategic definition को पढ़ें तो definition says that preposition is a word or set of words placed before a noun. कोई भी word या एक group of words जिसको हम noun के पहले रखते हैं या एक pronoun के पहले रखते हैं to indicate the relationship between the noun or a pronoun, जो हमें किसी भी noun या pronoun के relationship के बारे में बताता है. And the other words in the sentence, वो noun या pronoun या जो दूसरे वर्ड सेंटेंसेस में हैं उनके बीच का रिश्ता, उनके बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो हमें बताता है, वही होता है हमारा preposition. So I hope you've understood. If not, एक बार फिर से मुझे ध्यान से सुनिए. preposition क्या होता है? preposition वो words या set of words होता है जिनको हम कहाँ रखते हैं, noun या pronoun के पहले रखते हैं. वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ में जो रिश्ता है, वही रिश्ता क्या कहलाता है, वही बताते हैं हमें हमारे prepositions. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द जग इज ऑन द टेबल. तो भाई यहाँ पे नाउन हो गया जग, दूसरा नाउन हो गया टेबल. इन दोनों के बीच का रिश्ता, जग किधर रखा था, टेबल के ऊपर रखा था, यानी कि ऑन हमें बताता है वर्ड ऑन. तो हमारा preposition हो जाता है ऑन. जग हमारा नाउन है, टेबल भी हमारा नाउन है, इन दोनों के बीच में एक वर्ड रखा हुआ है जो हमें इन दोनों के बीच का रिश्ता बताता है, रिलेशनशिप बताता है, और वही वर्ड होता है हमारा preposition. That means the word on here acts as a preposition. Second sentence, water is in the jug. जो जग है उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है. अभी water is also a noun. Noun is the name of a person, place or thing. If you do not know, हम ये noun वाला भी एक वीडियो बना देंगे और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. वाटर भी एक नाउन है, जग भी एक नाउन है, इन दोनों के बीच में एक वर्ड रखा हुआ है दैट इज इन, और वो हमें क्या बता रहा है, वाटर के और जग के बीच का रिश्ता बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि भाई पानी कहाँ है, पानी हमारे जग के अंदर है. तो जो इन है वो हमारा preposition का काम करता है. द नेक्स्ट वन इज द मंकी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री. भाई जो मंकी था बड़ा ही नटखट था और वो ट्री के ऊपर जल्दी से चढ़ गया. तो जो मंकी है वो नाउन है, ट्री भी जो है वो नाउन है, और इनके बीच में जो रखा हुआ है वर्ड जो हमें इन दोनों के बीच का रिश्ता बताता है, वही है हमारा preposition that is on to. Okay, the next word here is the pen is in the box. तो भाई जो हमारा पेन था वो डब्बी के अंदर था. तो जो ये जो वर्ड है जो हमें ये बताता है कि हमारा पेन कहाँ था, वही हमारा preposition है, and that is the word in. She has brought a pen for her. वो अपने लिए एक पेन खरीद कर लेकर आई. वो लड़की और पेन के बीच का रिश्ता हमें कौन बताता है, भाई किसके लिए लेकर आई, अपने लिए लेकर आई, इसलिए वो वर्ड हो जाता है for, and that word is known as preposition. भाई अब मैं ये एक्सपेक्ट करके चलती हूँ कि आपको prepositions थोड़े थोड़े तो समझ आ ही गए होंगे, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े समझ आ गए होंगे, और जो नहीं आएंगे वो हम आगे देख लेंगे. चलिए यहाँ पर है एक छोटी सी एक्सरसाइज. अब हम सभी जानते हैं भाई हमारे हाथ पैरों को मजबूत रखने के लिए हमें एक्सरसाइज तो करने की जरूरत है. इसीलिए जो चीज हमने सीखी है उसको बेहतर सीखने के लिए हमारे ब्रेन को भी थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत होती है. तो वेरी फन एंड वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ. मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप करें. वीडियो के एंड में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे. जस्ट लेट मी रीड इट आउट फॉर यू, जस्ट लेट मी रीड द सेंटेंसेस फॉर यू एंड यू एंश्योर दैट यू गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ. फर्स्ट वन, identify the prepositions in the given sentence. आपको इस भूल भुलैया में से कुछ prepositions निकाल कर मुझे बताने हैं. पहला वाला सेंटेंस है I will wake up at 5 o'clock. Second question, second statement is he arrived before me. Third one here is I will be back by the evening. Fourth sentence is she is standing by the car. Next one is he jumped into the river. And the last one here is I want to learn something about the museum. I hope आपको ये sentences easily समझ आ गए होंगे. Just give it a try.
डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। जब हम योगा करते हैं तो हम अपने मसल्स को, अपने हाथ पैरों को जबरदस्ती पोजीशंस लेने के लिए स्ट्रेस नहीं करते। वैसे ही आपको अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इट्स जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज. Try if you can find out, try if you can identify the prepositions, note them down in a diary, and at the end of the video we're going to discuss the answers for this. So now let's move on to the next part of the video. That is the types of prepositions. भाई अब हमको पता तो चल गया कि prepositions क्या होते हैं, पर prepositions के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे लोगों के कई तरीके के लोग होते हैं, रही मन तेरे संसार में भांति भांति के लोग, वैसे ही रही मन तेरे संसार में भांति भांति के prepositions। तो कितने भांति के prepositions? भाई 5 types of prepositions आते हैं। Simple, first one is the simple one, simple prepositions, यानी कि सीधा साधा एक बेचारा preposition। दूसरा आता है डबल preposition, कपल preposition, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, ये वाला टाइप का डबल preposition. Just take it in a fun way, not seriously. Okay. Third one is compound preposition. बहुत कॉम्प्लेक्स बात है भाई, ये तो कंपाउंड है, ये तो भाई 4-5 लोग साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, नेताजी है। कंपाउंड preposition. Next is participle preposition, and the last one here is prepositional phrase. So let me take you through these types of preposition one more time. The first one is simple, next one is double, third one is compound, and fourth is participle, and fifth is prepositional phrase. One by one, we'll have a look at each type. Okay, तो पहला आता है भाई हमारा एक सीधा सच्चा मनुष्य, सिंपल preposition. सिंपल preposition क्या होता है? बस वही जो अभी हमने पढ़ा, जो साधारण है, सीधा साधा सा है, एक वर्ड है बेचारा, एक एकल जीवन जीने वाला, वही है हमारा सिंपल preposition. Where preposition, simple words which are used to express time, place, direction, position are called simple preposition. तो भाई वो prepositions जो बहुत सीधी तरीके से, आसानी से, इजीली हमें बता दें क्या टाइम हुआ है, कौन सी प्लेस है, किस डायरेक्शन में है, क्या पोजीशन है, उसी preposition को हम कहेंगे हमारा सिंपल preposition. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, और भाई ये उल्लू जी आपको समझा रहे हैं। एक्चुअली उल्लू को हम उल्लू ऐसे ही कहते हैं, बड़ा स्मार्ट बनता है। लेट्स सी कि कैसे है, क्योंकि भाई इसको सिंपल prepositions पता है। ओके, फर्स्ट वन इज शी सैट ऑन द चेयर। अब भाई ये जो वर्ड है ऑन, ये हमको लड़की के और चेयर के बीच का रिलेशन बताता है। लड़की और चेयर दोनों ही नाउन है, और ये एक नाउन के पहले रखा हुआ है, और ये हमें बताता है कि वो लड़की चेयर के ऊपर बैठी थी, यानी कि वो उसकी प्लेस, उसकी पोजीशन को बताता है। दैट मीन्स इट इज अ preposition, और हम इसको कहेंगे एक सिंपल preposition। भाई क्योंकि ये सिंपल है इसलिए हम इसको सिंपल बोलेंगे। सेकेंड है देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। तो वाटर और बॉटल के बीच के रिलेशनशिप को हमें एक ही वर्ड यहाँ समझा रहा है, दैट इज इन, और वाटर और बॉटल के बीच में ही रखा हुआ है। भाई वाटर और बॉटल दोनों ही नाउन है, और वो हमें बता रहा है कि जो पानी है वो बोतल के अंदर है, यानी कि वो हमें फिर पोजीशन बता रहा है कि किधर पे पानी है, पानी की क्या पोजीशन है, पानी की क्या प्लेस है। पानी की प्लेस है बॉटल के अंदर, तो जो वर्ड है इन वो हो जाता है हमारा preposition. थर्ड वन हियर इज शी फाउंड द बैग एट द बीच. She found the bag at the beach. तो जो लड़की थी उसको बीच पर एक बैग पड़ा हुआ मिला। तो अभी शी, बैग और बीच के बीच का जो रिलेशन है हमको वर्ड बताता है एट। भाई बैग पड़ा हुआ था, किधर पड़ा हुआ था, बीच पे पड़ा हुआ था, तो बैग की पोजीशन बताता है एक वर्ड, दैट इज द वर्ड एट। वो दो नाउन्स के बीच में रखा हुआ है, बैग के बीच में और बीच के बीच में रखा हुआ है, एंड द रिलेशनशिप इज दैट द बैग वाज एट द बीच, so the word at is the preposition here. Okay, the last here example is they were sitting by the wall. भाई वो दीवार के किनारे बैठे हुए थे, तो वो लोग और वॉल के बीच का रिलेशन क्या था? भाई वो बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे? वॉल के पास बैठे हुए थे। वो वॉल की उनकी पोजीशन वॉल के रिस्पेक्ट में बता रहा है, वो वर्ड है बाय, और बाय हो जाता है हमारा preposition. Okay, moving on to the one that is double preposition. भाई ये एकल चलने वाले लोग नहीं है। जो सिंपल था उसका नारा था एकला चलो, लेकिन ये जो डबल preposition है वो एकला नहीं चलो, वो चलो डबल चलो, एक को साथ लेकर चलो, पार्टनर के साथ चलो। तो ये जो हमारे डबल prepositions होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं?
टू सिंपल prepositions combine to make a double preposition. दो सीधे साधारण प्राणी जब साथ मिल जाते हैं तो हम उनको कहते हैं डबल preposition. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जो टीचर जी हमको बता रही हैं, वो है into, onto, upon and out of. जब इस तरह के वर्ड्स आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखते हैं, तुरंत समझ जाइए कि भाई वो तो डबल preposition है, वो अकेला सिंगल आदमी नहीं है. ओके. into दो वर्ड से मिलकर बनता है, in और to. onto दो preposition से मिलकर बनता है, on और to. और upon दो prepositions के साथ में मिलकर बनता है, up और on. और out of दो prepositions के साथ में बनता है, that is out and off. यहाँ मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स लिए हैं, but believe me there are many double prepositions like within, without, withheld, so many things. Okay, हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर करते हैं the detail next time. फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल में, once upon a time there was a rich man, once upon a time there was a beautiful princess. हम कभी भी किसी स्टोरी की शुरुआत इसी तरह से करते हैं, once upon a time. So the word here upon actually is a preposition. भाई किसी एक समय पे एक अमीर आदमी था, तो किसी एक समय पे, समय के साथ में ये हमारा रिलेशन बताता है अमीर आदमी का किसी समय पे, वो अमीर आदमी एक रिच आदमी था, तो वही एक वर्ड है जो हमारा preposition है, that is upon. सेकेंड वन है it is up to them to find a solution. भाई ये उनके ऊपर है कि अपनी एक समस्या का निवारण ढूंढें. तो उनका और समस्या के बीच का जो रिलेशनशिप है भाई solution, it is up to them. तो वो हमें बताता है एक वर्ड up to जो कि दो prepositions के साथ मिलकर बना है, that is up and to. So that is preposition, double preposition, up to. Third one is she never leaves without her bag. वो कभी अपने पर्स के बिना घर से बाहर नहीं जाती. भाई सही बात है, बिना पैसे के हम क्या करेंगे मार्केट में जाके. She never leaves without her bag. तो जो लड़की है और उसके बैग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें एक वर्ड बता रहा है यहाँ पे, वो है without, जो कि दो prepositions के साथ मिलकर बना है, that is with and out, and so it is a double preposition. Fourth example here is she went into the room. भाई वो रूम के अंदर गई, into the room. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है into, वो लड़की और रूम के बीच का रिलेशन बता रहा है, कैसे कि लड़की कहाँ गई, वो रूम के अंदर गई. अभी अंदर जाना बता रहा है हमको ये वर्ड preposition, और ये दो वर्ड्स के साथ में मिलकर बना है, दो prepositions के साथ में मिलकर बना है, that is in and to, and that is why it is a double preposition. The last one here is the monkey climbed onto the tree. Again same example. मंकी जी जो थे वो हमारे बंदर जी ट्री के ऊपर चढ़ गए. मंकी और ट्री का बीच का रिलेशन है, एक वर्ड बताता है on to, और वो दो सिंपल prepositions से मिलकर बना है on और to, इसलिए हम इसको कहेंगे double prepositions. Let's move on to another type here. Okay, हमारा अगला जो टाइप आता है वो है कंपाउंड preposition. भाई ये नेता लोग होते हैं, ये अकेले नहीं चलते, ये चार लोगों की पार्टी साथ लेके चलते हैं. Just take it on a lighter note. मैं सिर्फ इसको एक ह्यूमर के तौर पे आपको बता रही हूँ. Actually compound prepositions क्या होते हैं? Come back to the serious note. Okay, more than two words, usually a simple preposition. भाई जो डबल थे वो दो थे, सिंगल था वो एक था, कंपाउंड जो है वो दो से ज्यादा है. तो यहाँ पर आता है more than two words, usually a simple preposition and other words. ज्यादातर conventionally या तो एक सिंपल preposition होता है और बाकी के दो दूसरे वर्ड्स होते हैं, join to form a compound preposition. ये सब साथ में मिलकर एक compound preposition बनाते हैं. कैसे? इनके एग्जांपल्स देखिए. in addition to, ये जो पूरा ये सेट ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप है, ये पूरा एक preposition का काम करता है. इसमें जो in है ये सिंपल है, बाकी addition to जो है वो दूसरे वर्ड्स हैं. on behalf of, on जो है वो एक सिंपल preposition है, behalf of other words, ये सब साथ में मिलकर इन्होंने बनाया एक compound preposition. in the middle of, तो जो in है again that is a simple preposition, and the middle of this set of words, these are other words, they combine to make one compound preposition, etc. are compound prepositions. Okay, यहाँ पे भी कुछ examples के साथ में इसको समझते हैं. पहला वाला, we were in the middle of the conference. हम जो थे भाई ये कॉन्फ्रेंस के एक मीटिंग के बीच में थे. सो द सेट ऑफ वर्ड्स इन द मिडल ऑफ, जब हम preposition के तौर पर लेंगे तो हम इस पूरे सेट ऑफ वर्ड्स को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई एक वर्ड
दो चीजों के बीच का रिलेशन नहीं बता रहा, यहाँ एक सेट ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो चीजों के बीच का रिलेशन बता रहा है, और वो एक नाउन के पहले भी रखा हुआ है, इसलिए हम इस सेट ऑफ वर्ड्स को, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टुगेदर पढ़ते हैं कंपाउंड preposition. Second one, she received the award on behalf of her friend. Again another set of words, on behalf of. On जो है वो एक simple preposition है, और behalf of ये दो वर्ड्स और उसके साथ में मिलकर एक कंपाउंड preposition बनाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि उसने अपने फ्रेंड के बिहाफ पर, अपने फ्रेंड की तरफ से एक अवार्ड रिसीव किया. किसकी तरफ से किया? ऑन बिहाफ ऑफ हर फ्रेंड. ओके, तो थर्ड वाला जो हमारा सेंटेंस है, he learns karate in addition to his regular studies. वो कराटे भी अपनी रेगुलर स्टडीज के अलावा सीखता है. तो इन एडिशन टू, ये जो सेट ऑफ वर्ड्स है, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ कंपाउंड preposition, बिकॉज इन हियर इज अ सिंपल preposition. इन जो है हमारा वो सिंपल preposition है, और एडिशन टू ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने इनके साथ में जॉइंट वेंचर किया, जुड़ गए ये उसके साथ में, और इन्होंने बनाया एक कंपाउंड preposition, जो हमें बताता है एक बच्चे के बारे में, एक लड़के के बारे में, और उसकी स्टडीज के बीच कराटे, और उसकी कराटे की स्टडीज, कराटे और स्टडीज के बीच के रिलेशनशिप को. कराटे भी सीखता है अपने एकेडमिक स्टडीज के अलावा. क्या सीखता है? कराटे सीखता है. तो कराटे इन एडिशन टू हिज रेगुलर स्टडीज, यानी इसके अलावा भी. ओके, the fourth one is my car is parked in front of the plaza. Again here is a group of words. In is a simple preposition. बाकी ये जो front of है, ये other words हैं, ये इसके साथ में जुड़ गए हैं to make one compound preposition. Moving on to the next type, participle prepositions. अब भाई अगर आपने participle verbs पढ़े हैं, आप जानते होंगे the changed form of verb is known as the participle form of the verb, such as अगर हम past की बात करते हैं तो ed हो जाता है, और present continuous की बात करते हैं तो ing हो जाता है. ओके, तो अगर ऐसे suffixes आपको used मिले किसी भी preposition में, किसी भी preposition में अगर ऐसा कोई suffix लगता है, जैसे ed है या ing है, तो उसको हम participle prepositions कहेंगे. इनके एग्जाम्पल्स होते हैं given, considering, provided, during, concerning. Okay, it is not necessary कि ed और ing ही होगा, but a changed form of a word, a changed form of a word is actually known as participle. First one, they are always interested in anything concerning science. वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कुछ भी जो भी साइंस से जुड़ा हुआ हो, साइंस से रिलेटेड हो, concerning science. So here the word concerning is placed before science, and it is telling about the relationship between their interest and science. अब ये साइंस के पहले भी रखा हुआ है, साइंस एक नाउन है, और वो कुछ लोगों के इंटरेस्ट और साइंस के बीच का रिलेशन बताता है, एंड सच वर्ड्स आर नोन एज preposition. बट व्हाट काइंड ऑफ preposition? क्योंकि इसके आगे ing लगा हुआ है, it is changed form of a verb, that means it is participle prepositions. Don't worry, we are going to take this topic separately and elaborate on it later. Second वाला है he learns dancing during the day. He learns dancing during the day. भाई वो जो है, लड़का जो है, वो दिन के दौरान डांसिंग सीखता है. कब सीखता है? दिन में सीखता है. तो जो डे है और उसके सीखने के बीच का रिलेशनशिप है, वो हमें एक वर्ड बताता है, दैट इज ड्यूरिंग. तो ड्यूरिंग जो है वो चेंज्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि उसके पीछे ing लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ पार्टिसिपल preposition. Third one is the discussion was regarding his health. The discussion was regarding his health. भाई जो वार्तालाप चल रहा था, जो डिस्कशन चल रहा था, वो किस बारे में था? वो हेल्थ के बारे में था. तो हेल्थ का और डिस्कशन का रिलेशनशिप बताता है हमें एक वर्ड, वो है रिगार्डिंग. वो रखा हुआ है एक प्रोनाउन के पहले, दैट इज हिज. हिज एक प्रोनाउन है, हिज के पहले वो वर्ड की पोजीशन प्लेसमेंट किया गया है. तो भाई वो prepositions तो ऑब्वियसली वो preposition है. अब preposition है, पर किस प्रकार का preposition है? वो एक participle preposition है, because it is actually a changed form of word. Okay. नेक्स्ट आता है हमारा prepositional phrase. एक्चुअली prepositional phrase को हम
तब बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जब हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या हैं भाई? प्रेपोजिशन फ्रेजेस मैंने आपको बड़े शॉर्ट तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश की है। कोई भी प्रेपोजिशन प्लस एक ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रेपोजिशन प्लस एक ऑब्जेक्ट, हमारा प्रेपोजिशन प्लस एक ऑब्जेक्ट ये मिलकर हमारा बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, या फिर प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। प्रेपोजिशन के साथ में एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के साथ उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला एक कोई वर्ड होता है, मॉडिफायर होता है, दैट इज दैट together makes a prepositional phrase. Prepositional phrases में होता क्या है कि हम we put more emphasis on the preposition word. ऐसे words जो हमें preposition पे ज्यादा emphasis डालते हैं, जो ज्यादा हमें focus करते हैं हमारे preposition पे, वैसे set of words में हम उस set of words को हम prepositional phrase कहते हैं. You will understand more about this type of phrases, this type of prepositions when we will study phrases in maybe our videos in the later upcoming videos. मैं phrases भी cover करूंगी, तब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। अभी के लिए आप ये जान सकते हैं कि prepositional phrases बनते कैसे हैं। वो मिक्सचर से बनते हैं preposition के और एक ऑब्जेक्ट के, या फिर preposition, ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर के। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं उसके? at home, in time, with me, from my mother and along the busy lane. Okay. Now, after studying so many types of prepositions and what is preposition, हम अभी भी थोड़ा सा confused है कि भाई what do prepositions exactly express? इतना कुछ बताते हैं preposition. Prepositions हमेशा noun या pronoun के पहले रखे हुए होते हैं, वो हमें noun या pronoun का और दूसरे words के बीच का relationship बताते हैं, but वो express क्या करते हैं, क्या क्या बताते हैं, और भी क्या क्या बताते हैं। तो what do prepositions exactly express? They exactly express, first thing is time, वो हमें बताते हैं क्या समय है। Place, वो हमें बताते हैं कि कौन सी place है। वो हमें बताते हैं direction, वो हमें बताते हैं position, and most importantly travel and movement. अब कई लोग travel and movement को direction के साथ में भी conjoin कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि भाई direction and travel and movement are one and the same thing, बिल्कुल हो सकता है। So I'm just telling you कि हमें ये चीजें prepositions express करते हैं। टाइम एक्सप्रेस करते हैं, प्लेस एक्सप्रेस करते हैं, डायरेक्शन एक्सप्रेस करते हैं, पोजीशन एक्सप्रेस करते हैं, ट्रैवल एंड मूवमेंट एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दीज आर द एग्जांपल्स, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट वाला जो है, शी विल रीच द एयरपोर्ट बाय 6 PM। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है बाय, वो है हमारा प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन हमें क्या बता रहा है? ये प्रेपोजिशन हमें टाइम बता रहा है कि भाई वो 6 PM, शाम के 6 बजे वो एयरपोर्ट पे पहुंचेगी। कितने बजे पहुंचेगी, किस टाइम पे पहुंचेगी? 6 PM पे पहुंचेगी। सो दिस प्रेपोजिशन टेल्स अस टाइम। आई हैड लंच एट 2 PM। मैंने दिन का खाना खाया, कितने बजे खाया? दोपहर के 2 बजे खाया। तो भाई ये भी हमें टाइम बताता है। द अंडरलाइन वर्ड एट टेल्स अस टाइम। थर्ड वन इज आई विल रीड दिस बुक इन द इवनिंग। मैं ये किताब शाम को पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा? फिर वही क्वेश्चन आता है कि किस टाइम पे पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा, क्या समय है, वो हमें बता रहा है ये प्रेपोजिशन इन। तो ये हो जाता है हमें अगेन टेलिंग अबाउट द टाइम, कब पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा। फोर्थ वन, शी बॉट द बैग फ्रॉम द सुपरमार्केट। अब उसने ये कहां से खरीदा? जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर करते हैं, जब हम व्हेन का क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें टाइम का प्रेपोजिशन मिलता है। जब हम वेयर का क्वेश्चन आंसर करते हैं अपने आप में ही, तो हमें प्लेस का प्रेपोजिशन मिलता है। ओके, वैसे ही शी बॉट द बैग फ्रॉम द सुपरमार्केट। फ्रॉम वेयर डिड शी ब्रॉट द बैग? कहां से खरीदा भाई उसने वो बैग? वो सुपरमार्केट से खरीदा। सो दिस इज द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि भाई वो हमें ये बता रहा है, वो प्रेपोजिशन हमें ये बता रहा है कि उसने वो बैग कहां से खरीदा। ओके, शी वॉज इमीडिएटली रश्ड टू द हॉस्पिटल। भाई उसको कहाँ ले जाया गया, किस जगह पर ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये प्रेपोजिशन हमें जगह के बारे में बताता है, इसलिए ये प्रेपोजिशन टू जो है वो प्लेस के बारे में बता रहा है। आई विल सी यू एट द सिनेमा हॉल। मैं तुमको सिनेमा हॉल में मिलूंगा। तो कहीं भाई कहाँ मिलोगे? सिनेमा हॉल में मिलूंगा। तो अगेन द वर्ड एट हियर डिनोट्स द प्लेस, expresses the preposition of place. Seventh one here is they are traveling towards Himachal Pradesh.
अब भाई यहाँ आ जाता है एक डायरेक्शनल प्रेपोजिशन जो हमें एक्सप्रेस करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई हिमाचल प्रदेश के तरफ जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के तरफ, तो वो हो जाता है डायरेक्शन, यहां से हिमाचल की तरफ, दैट इज आवर डायरेक्शन, किस दिशा में, वही हमारी दिशा है। ओके, 8th वन इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो भाई फ्रॉम और टू यहाँ दो prepositions हैं और वो डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो यहाँ पे ये जो preposition है वो डायरेक्शन एक्सप्रेस कर रहा है। 9th वन, ही इज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। वो क्या है, वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो एक लीडर है, कम्युनिटी का लीडर है। और ये हमें कौन सा preposition बता रहा है, ये हमें preposition ऑफ जो है वो ये सेंटेंस में बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो preposition है वो पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। 10th वाला एंड द लास्ट वन हियर इज आई वुड लाइक टू सिट नियर द विंडो। अब यहाँ पे जो लड़की है या लड़का है कोई भी, वो कह रहा है कि मैं विंडो के पास में, खिड़की के पास में बैठना पसंद करूंगी। ओके, सो द लास्ट वन हियर इज आई वुड लाइक टू सिट नियर द विंडो। तो मैं जो है भाई मुझे विंडो के पास बैठना पसंद है। तो ये जो preposition है नियर, ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है, वो पोजीशन जहां हमें बैठना पसंद है वो है नियर द विंडो। तो जो वर्ड नियर है वो हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये वर्ड, ये preposition पोजीशन को एक्सप्रेस करता है। Now it's time to exercise for you. It's time to exercise. भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने एक वार्म अप एक्सरसाइज की थी अपने प्रीवियस स्लाइड में। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्सरसाइज 1 के जो आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस फॉर यू, वो आपको खुद करनी है, और ये वाली एक्सरसाइज हम अभी इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज आई विल वेक अप एट 5 o'clock। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है prepositions कौन से हैं, तो आई विल ओनली टेल यू द आंसर्स। द preposition in the first sentence is at, at। सेकेंड सेंटेंस आता है हमारा he arrived before me। तो वो वर्ड जो हमें किसी चीज की पोजिशन बताता है कि वो पहले, मुझसे पहले आया, दो लोगों के बारे में रिलेशनशिप बता रहा है और एक प्रोनाउन के पहले लगा हुआ है, दैट इज द वर्ड बिफोर। तो हियर द करेक्ट preposition will be before। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल बी बैक बाय द इवनिंग। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाय। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज स्टैंडिंग बाय द कार। शी इज स्टैंडिंग बाय द कार, यहाँ पर भी जो हमारा preposition है वो है बाय। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो preposition जो हमारा हो जाएगा वो होगा into। Next and the last sentence is I want to learn something about the museum, so the preposition here will be about। I hope you've got all your answers। पहले वाले में at, second is before, third one is by, fourth one is by again, and then fifth one is into, and the last sixth one is about। हमारे आंसर्स जान लेने के बाद लेट्स मूव to the next module. Here I have a very interesting activity for you. This is actually very interesting and very enjoyable. अगर आप इसको करना चाहें तो आप बेशक करिए, and I tell you with full discipline if you do this, no, आपको prepositions इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं आ सकता। बहुत फन एक्सरसाइज है, आप एंजॉय करते करते सीख भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो आपको इस एक एक्टिविटी से आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। सो लेट्स हैव सम फन टुगेदर। द एक्टिविटी इज लिसन टू योर फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग विद द लिरिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी इंग्लिश सॉन्ग ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिरिक्स समझ में ही आए। आई नो मेनी ऑफ यू आर नॉट, मेनी ऑफ अस आर वेरी नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश। हम अगर इंग्लिश में अच्छे भी होते हैं, कई बार हमें एक्सेंट्स समझ में नहीं आती फॉरेन कंट्रीज की, या हॉलीवुड सॉन्ग्स जब हम सुनते हैं हम एक्सेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको लिरिक्स समझ में नहीं आते। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक सॉन्ग लेना है, पेपीसा हो या शांत म्यूजिक हो, या जैसा भी आप, जिसका भी आपको म्यूजिक पसंद आता है, आप वो सॉन्ग लीजिए। फिर आप गूगल पे से उसके लिरिक्स को सर्च करिए। जैसे ही आपको लिरिक्स मिल जाते हैं, आप लिरिक्स अपने सामने रखिए,
गाना बैकग्राउंड में गुनगुनाइए। उन लिरिक्स में से आपको क्या करना है, गाना गुनगुनाते गुनगुनाते आपको उसमें prepositions को अंडरलाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो। जितना कि आपने इस वीडियो से सीखा है prepositions के बारे में, जितना आप prepositions समझ पाए हैं, उस हिसाब से उस नॉलेज को यूज करते हुए आपको लिरिक्स में से prepositions को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है। बिलीव मी गाइज, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन so many ways, I tell you। पहली बात तो आप जब गाना एंजॉय करेंगे आपका दिमाग शांत होगा। दूसरी चीज, आप इंग्लिश के लिरिक्स भी साथ में गुनगुना रहे होंगे, सो इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इट इज गोइंग टू ब्रिंग मोर इंटरेस्ट फॉर यू इन इंग्लिश। तीसरी चीज है, आप ये एक्सरसाइज करते 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 ना prepositions भी बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। So that's all for today. I hope you've enjoyed the video। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने कमेंट्स जरूर मुझे भेजिए। I would like to know what are your suggestions, what are your criticism, and what do you think about this. Also, I would like to tell you something more. I want to tell you that I'm taking online coaching classes for specifically for English for classes 9th and 10th academic, where you will get all your academic syllabus covered, CBSE schools, and plus you will gain the confidence of speaking in English. It is a 100 days program, and those of you want to join, आप में से कोई भी अगर मुझे इस program में join करना चाहता है, you can connect me on my business, you can connect with me on my business account. The number will be in the description box below. Till then, have fun, keep learning, keep enjoying, and keep following your passion. Thank you so much.